general science. Very important topic, Coulomb's law of electrostatic repulsion or attraction. Say the two charges are there, plus Q and the plus Q. 2 point charges. If these two charges are placed at a particular distance, then what happens? Positive Q, the repulsion will be there. Repulsion, right? If it is not positive, say for example, if it is negative, if this is a negative, then what happens? The force of attraction. Now the point comes is that what is the magnitude of the force between this 2 point charges? Maybe the positive or the positive negative or negative. Magnitude of the force we have to find with the help of Coulomb's law of electrostatic repulsion or attraction. Very, very important. Try to understand the magnitude, how to find the magnitude. Try to understand how to find the direction of the force experience. Okay? Coulomb's law of electrostatics. Very, very important. This is applying for the point charges. What is the meaning of the point charges? Point charges means the charges having the linear size is much smaller than the separation between the charges. What it means? Point charges means having a very small size, but the separation is much more. Now, Coulomb's law is the law which gives the force, magnitude of the force and the direction when the two charges are placed in its vicinity. दो चार्ज है, मान लेते हैं यहाँ पर 2 point charges Q1 and Q2. ये दोनों के बीच लीनियर डिस्टेंस है R. दोनों अगर पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा. अगर एक निगेटिव एक पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन लगेगा. सिंपल. नाउ कुछ भी हो, द अकॉर्डिंग टू कूलम्स, ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है. दिस इज इन फैक्ट द एक्सपेरिमेंटल फैक्ट. According as per this law, the magnitude of the force means force Q1 is applying on Q2, or the magnitude of the force Q2 is applying on Q1. दोनों हो सकता है. ये फोर्स, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है, ये चार्ज इस पर फोर्स लगा रहा है. दोनों का मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस Q1 Q2 बाई R². सो इसको अगर हम F से डिनोट कर रहे हैं, F मैग्नीट्यूड ऑफ दिस F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R². Now, to remove this direct proportional sign, we have to multiply constant K, Q1 Q2 by R². This is the magnitude. Now, this K, what is this K? K is, find out, is equal to 1 by 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the absolute permittivity of free space. Epsilon naught क्या है?
एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब वैक्यूम में अगर ये दोनों चार्ज को रखा गया तब इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर कोई दूसरा मीडियम है तो अलग फोर्स लगेगा, उसके बारे में दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस लेटर ऑन। हियर k is equal to 1/4 pi epsilon naught, and by calculating the value, this epsilon naught is having the value for the free space 8.85 into 10 to the power minus 12 coulomb square, Newton to the power minus 1 and meter minus 2। इतना एब्सोल्यूट नॉट का वैल्यू होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ये मीडियम का एक कांस्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस है उस मीडियम में कितना एक्टिवेट होती है, वो एक उसका कांस्टेंट है, कितना परमिट होता है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो यहाँ पर k का वैल्यू जब फाइंड आउट किया गया तो k का वैल्यू आता है 9 इंटू 10⁹। इसका वैल्यू हम लोग 9 इंटू 10 जब कैलकुलेट आफ्टर कैलकुलेशन we got this particular value, k is equal to, that value you have to remember 9 to 10⁹ इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, दैट्स द यूनिट। यूनिट कैसे आया, k is equal to how the unit comes, k is equal to f r square by q1 into q2, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। So in this Coulomb's law, that f is equal to 9 into 10⁹ q1 q2 by r square. Now the point is, this electrostatic force F depends on, किस पर डिपेंड कर रहा है, a system of unit। ये किस पर डिपेंड करता है, सिस्टम ऑफ यूनिट यूज्ड, उस पर डिपेंड करता है। And also it depends on the nature of the medium in which charges are placed। मीन्स वो दोनों चार्ज किस मीडियम में रखा गया है उस पर डिपेंड करा। तो फॉर SI यूनिट के लिए इनफैक्ट F क्या होता है, F इज इक्वल टू k q1 q2 बाई r स्क्वायर इज इक्वल टू k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r। ये इंटरेस्टिंग है, q1 q2 बाई r स्क्वायर। ये यहाँ पर देखिए कि एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r जो है दैट यू हैव टू रिमेंबर, द एप्सिलॉन r इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। मतलब क्या, ये जो दो चार्ज है इसको हम एक पर्टिकुलर वैक्यूम या एयर छोड़ के दूसरा मीडियम में रखें। हो सकता है ये दोनों चार्ज को हम एक केरोसिन ऑयल में रखें या ईथर में रखें, कोई दूसरा मीडियम में Q1 Q2 को, डिस्टेंस वही है R। तो केरोसिन ऑयल या ईथर दोनों का एक अलग कांस्टेंट होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, तो हम लोग वहाँ पर उसका यूज़ करेंगे। इनफैक्ट दिस इज द आइडियल वन। द करेक्ट फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन r q1 q2 by r square। This is the correct magnitude. For vacuum, अगर वैक्यूम है तो एप्सिलॉन r को 1 लिया जाता है। रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है वैक्यूम के लिए, 1। तब ये f हो जाएगा 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर 1 हो गया, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये इसका वैक्यूम के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन अगर मीडियम है तो हम लोग एप्सिलॉन आर लेंगे, राइट। आर मीन्स ये एब्सोल्यूट रिलेटिव परमिटिविटी है क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एप्सिलॉन आर? एफ ए बाई एफ एम, मतलब क्या? वही दो चार्ज, ये दोनों चार्ज जब अगर मान लेते हैं वैक्यूम में रखा हुआ है या एयर में रखा है तो एक फोर्स होगा, उस फोर्स का नाम दिए एयर, एफ ए। और फिर हम यही दोनों चार्ज को क्या किए, ये दोनों चार्ज को एक कोई मीडियम में रखें, इन मीडियम। तो एक पर्टिकुलर फोर्स इसमें ये दोनों के बीच फोर्स आया, कुछ ये दोनों में चेंज होगा। यहाँ पर जो फोर्स होगा वैक्यूम में और यहाँ जो फोर्स होगा ये दोनों में चेंज होगा। ये मीडियम वाला फोर्स कम हो जाएगा। कितना कम होगा? 1 बाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बाई एप्सिलॉन आर के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर ये जो मीडियम में इसका फोर्स मान लेते हैं एफ एम नाम दिए और इसका एफ ए। तो एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? द रेशियो ऑफ द फोर्स इन एयर and to the ratio of the force, electrostatic force between the two charges in the medium. ये दोनों को डिवाइड करेंगे तो then you will get the epsilon r, that is the relative permittivity of the medium, right? Now something more about this Coulomb's force. तो ये तो था कि डायरेक्शन मैग्नीट्यूड के बारे में। Now comes on to the direction. How to find the direction? Before coming on to the direction and some more points, एक चीज़ और याद रखना है, यहाँ पर Q1 चार्ज है, यहाँ पर Q2 चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। ये इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, ये इस पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन। तो हम डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अगर हमको Q1 Q2 पर फोर्स हमको देखना है तो Q1 को फिक्स करके Q1 को पकड़ के रखेंगे और तो Q1 किधर जाएगा? उस ओर, दैट इज डायरेक्शन। ये दोनों पॉजिटिव है तो रिपल्सन होगा। जो जिस पर फोर्स लगा रहा है Q1 Q2 पर लगा रहा है तो जो लगा रहा है उसको हम फिक्स कर दिए, वो पकड़ के रखे। तो Q2 किधर जाएगा? इधर जाएगा, दैट इज द डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन 1 2 पर लगाया। अगर हमको ये फोर्स निकालना है Q2 Q1 पर फोर्स जो लगा रहा है तो Q2 को पकड़ के रखे और ये Q1 पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, दैट इज योर F2 इज अप्लाइंग ऑन 1, ये डायरेक्शन है। डायरेक्शन निकालने का यही तरीका, जो फोर्स लगा रहा है उसको पकड़ के रखेंगे और बाकी दूसरा फोर्स उसको हिट करके बाहर निकालना है। अगर पॉजिटिव है तो उस तरफ, या फिर अगर मान लेते अपोजिट होता तो अट्रैक्ट करता। ये डायरेक्शन निकालने का तरीका है। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ F1 to 2 इज इक्वल टू द F2 to 1। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होता है। सो हियर एक्शन रिएक्शन पेयर इज देयर। सो ये चीज़ याद रखना है। और एक पॉइंट याद रखने का है, ये दोनों फोर्स किस तरह का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरह का? सेंट्रल फोर्स है। दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स इसका मतलब क्या होता है? सेंट्रल फोर्स का मतलब ये होता है, ये दोनों फोर्स जो है यहाँ Q1 Q2, इट एक्ट्स इन बिटवीन द लाइन ऑफ द टू चार्जेस ज्वाइनिंग बिटवीन देम। ये दोनों फोर्स को ज्वाइन करने वाला लाइन है उसके बीच में लगता है, माने उसी लाइन में। इसका मतलब अगर हम मान लेते हैं हम यहाँ पर एक फोर्स, कोई स्टूडेंट को ये अगर ये बोल दिए कि ये दोनों अपोजिट फोर्स लगता है, ये इधर लगा रहा है इस ओर, ये इधर, तो वो स्टूडेंट ऐसा भी कर सकता है अपोजिट, ये डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में। तो क्या ये बीच में ये इसका आर डिस्टेंस है, क्या ये एप्लीकेबल होगा? नो, कूलम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल हियर। यहाँ पर ये टॉर्क डेवलप हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर ऐसा नहीं, एक ही लाइन में
ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, तो सेंट इसीलिए बोलते हैं अलोंग द लाइन ऑफ द टू चार्जेस जॉइनिंग बिटवीन, इसी लाइन पर फोर्स, ये F2 to 1 और दिस इज योर F1 to 2, अपोजिट डायरेक्शन, ये चीज़ ख्याल रखना है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस इज योर, दिस कूलम्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द कंजर्वेटिव फोर्स. ये किस तरह का फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स है. कंजर्वेटिव फोर्स मीन्स इट डज, कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है? इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ. ये पाथ इंडिपेंडेंट रहता है. पाथ हम Q1 Q2 को, Q1 यहाँ है मेरा, Q2 यहाँ कहीं है. इट डज नॉट डिपेंड मीन वर्क डन डज नॉट डिपेंड. तो Q2 को वैसे ऐसे घुमा के ऐसे लेके आए यहाँ पर, तो कैसे हम लेके आए वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा. ये डिपेंड करेगा कहाँ पर लेके आए. यहाँ पर, यहाँ से हम ऐसे लेके आए थे, लेकिन अल्टीमेटली ये फाइनल पोजीशन है Q2 का. तो हम यही डिस्टेंस को देखेंगे, इनिशियल फर्स्ट का पोजीशन और सेकंड का पोजीशन कहाँ से लेके आए उस पर डिपेंड नहीं. तो दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स. Now, just to see another aspect of this Coulomb's law, here the two objects, 1 and 2. Object 1 is having the mass 2 kg. Object 2 is having the mass 4 kg. ये 2 kg का ऑब्जेक्ट है, ये 4 kg का ऑब्जेक्ट है, लेकिन दोनों में चार्ज सेम है, सेम नेचर का चार्ज है. इसमें +2 कूलम है और इसमें +4 कूलम है. चार्ज, कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज. कूलम ये तो मालूम है, इज द यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज. इसमें 2 कूलम है, +2 की कूलम, यहाँ +4 कूलम. कूलम इज ऐसा यूनिट, ये कैसा यूनिट है? ऐसा यूनिट चार्ज का. अब यहाँ पर क्वेश्चन है, ये 2 kg का ऑब्जेक्ट, ये 4 kg का, इसमें 2 + 2 कूलम, यहाँ 4 + 4 कूलम. दोनों में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन. ये इधर दोनों धक्का लगेगा. मान लेते हैं से दिस लाइटर ऑब्जेक्ट विल गेट अ repulsive force in this direction and its speed becomes, ऐसे ऐसे इधर से इधर जाने लगा with a speed of 10 मीटर पर सेकेंड. तो इसमें भी कुछ मूवमेंट होगा क्योंकि रिपल्सन है. ये किस स्पीड से इधर जाएगा? व्हाट शुड बी द स्पीड? अब यहाँ पर हम क्या चीज़ देखें, कैसे हम निकालेंगे? तो डेफिनेटली यहाँ पर लीनियर मोमेंटम is also conserved. लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, लीनियर मोमेंटम. तो यहाँ उसका यूज करेंगे. तो लीनियर मोमेंटम यहाँ इस केस में लीनियर मोमेंटम हम क्या करेंगे? लीनियर मोमेंटम मीन्स मास इनटू वेलोसिटी. तो यहाँ पर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड वाले में क्या निकालेंगे? 2 इंटू इसका स्पीड 10, दैट शुड बी द, इट शुड बी इक्वल टू द 4 इंटू V. तो हम लोग V निकाल लेंगे. V इज इक्वल 20/4, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. मीन्स ये अगर 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ये 5 मीटर पर सेकेंड से जाएगा. ये कितना हो जाएगा? 5 मीटर पर सेकेंड से इधर जाएगा. रिपल्सिव फोर्स. दैट इज द अनदर कंसेप्ट ऑफ कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड, one question, say the another point, the Q1 Q2 charge is there and it is these two charges are placed at 1 meter distance. 1 meter distance. What should be the, what question is that, what should be the minimum force between them in
air or vacuum. What should be the minimum force between them means Q1 Q2 in air or in vacuum. ठीक है, कितना minimum possible force, minimum possible. Interesting question. इंजीनियरिंग का में ये क्वेश्चन आ चुका है. Q1 Q2 चार्ज है, कुछ सिर्फ यही दिया है कि दोनों 1 मीटर के डिस्टेंस में है. तो तुमको मालूम करना है कि क्या मिनिमम पॉसिबल फोर्स होगा ये दोनों के बीच में. तो क्या हम सॉल्व करेंगे कैसे इसको. मिनिमम फोर्स दो ऑब्जेक्ट के बीच क्या हो सकता है. हम लोग ये लेके चल रहे हैं Q1 और Q2 में मिनिमम फोर्स है E, चार्ज है E. इसमें भी E है, इसमें भी E से तो नीचे नहीं हो सकता है. फ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल, क्वांटाइजेशन. सो E. तो यहाँ पर फोर्स क्या हो जाएगा. फोर्स इज इक्वल टू K का वैल्यू हो गया 9 इंटू 10⁹ E इंटू E स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर माने 1. तो दैट मीन्स 9 इंटू 10⁹ इंटू E स्क्वायर. E स्क्वायर मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इतना का स्क्वायर, इतना न्यूटन. इतना फोर्स दोनों के बीच लगेगा. दैट इज द मिनिमम फोर्स, मिनिमम पॉसिबल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज दिस. इसको हम लोग ये ऐसा लिखते हैं. मीन्स इसको K E स्क्वायर भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, राइट. दैट इज ऑल अबाउट द कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक. तो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक चीज़ और यहाँ पर जो इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आता है, न्यूमेरिकल्स उसमें हमको समझना होगा कि जो फोर्स लग रहा है, फोर्स कहीं पर भी फोर्स है, तो वो फोर्स जो है, वो फोर्स अगर 2 फोर्स है या 3 फोर्स है, इट शुड बी एडेड वेक्टोरियली. डायरेक्ट एडिशन ऑफ वेक्टर नहीं होगा, एडेड वेक्टोरियली. वेक्टर सम होता है, वेक्टर एडिशन होता है. जैसे एग्जांपल ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे. ऐसे एक फोर्स लग रहा है, यहाँ पर चार्ज है Q1, यहाँ पर Q2, एक और चार्ज है यहाँ पर इसके विसिनिटी पर V3. तो एक फोर्स यहाँ पर लगा, एक फोर्स इधर लगा. तो जैसे मान लो नेचर ऑफ, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द नेचर ऑफ द चार्ज, रिपल्सिव और द अट्रैक्टिव. लेकिन अगर 2 फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है, यहाँ पर भी फोर्स है, तो हमको इसका नेट फोर्स निकालना है इस सिस्टम का. तो हम लोग वेक्टोरियली ऐड करेंगे दोनों फोर्स का, चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, या पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो, या ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो. तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग. ठीक है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द न्यूमेरिकल्स. One more point in the last point of the Coulomb's law, it's a property, is that if the two charges are there, Q1, Q2, maybe any kind of nature force of attraction or repulsion is there. मान लेते हैं फोर्स, एक फोर्स लग रहा है F1 इस ओर, ये दो पॉइंट चार्जेस है, फोर्स लग रहा है इधर. ठीक है, दोनों के बीच R डिस्टेंस. अगर एक तीसरा चार्ज भी यहाँ पर आ गया, एक और फोर्स यहाँ पर लगना शुरू होगा. तीसरा चार्ज आ गया Q3, एक और चार्ज आ गया यहाँ पर, मान लेते हैं Q4, यहाँ पर भी फोर्स लगेगा. एक और चार्ज आ गया यहाँ पर Q5, यहाँ भी फोर्स लगेगा. तो जितना भी फोर्स लग रहा है, याद रखना है, कोई 2 चार्ज के बीच जो फोर्स लग रहा है और बाकी सब चार्ज के लिए इस फोर्स पर कोई असर नहीं होगा. देयर इज नो चेंज, नो अल्टरेशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द 2 चार्जेस इन द प्रेजेंस ऑफ और द एब्सेंस ऑफ सराउंडिंग चार्जेस. ये दोनों पॉइंट चार्ज के सराउंडिंग में जितना भी चार्ज हो, उसके बीच वो सब का फोर्स इस फोर्स पर असर नहीं डालेगा. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एनी अल्टरेशन ऑफ दिस F1. F1 तो रहेगा ही. ये अगर F2 है,
ये अगर F3 है, ये अगर F4 है, तो नेट फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से हम लोग निकालेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का यूज़ करके हम लोग नेट फोर्स निकालते हैं। नेट फोर्स प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एल्जेब्रिक सम होगा। एल्जेब्रिक सम मतलब सिग्मा ऑफ एफ से हियर एन, वेयर एन इज इक्वल टू 1 to n, या इसको आई कर देते हैं, आई वेयर आई इज इक्वल टू 1 to n। सब एल्जेब्रिक सम, ये वेक्टर सम, नॉट एल्जेब्रिक बट इट इज वेक्टर सम, सब वेक्टर सम होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तो हुआ कूलम्स लॉ के बारे में, द डिटेल्स आर देयर। ओके।